हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ अंजलि प्रताप और यहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर विथ आई एग्जाम बी लर्निंग एक्सपीरियंस। आज की सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अ वेरी specific aspect of our exam preparation, and that is the mistakes, or I can say the biggest mistakes that many aspirants make during their preparation. और उनकी गलती से अगर हम सीख जाएं और हम अपने उन मार्क्स को अगर सिक्योर कर पाएँ तो क्या ही बात, राइट? सो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स सो दैट यू कैन अवॉइड देम एंड स्टे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन. सो लेट्स डाइव राइट इन एवरीबडी. वेरी फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एवरीवन, and stay tuned to the last segment of this video to understand each and every part which is going to be helpful, and basically ये आपके बहुत सारी fatalities को रोक देगा. The very first step which you can see on the screen is ignoring the exam pattern and syllabus. I think see guys, first of all you all are aware that the RBI grade B exam has basically three stages, right? phase 1, phase 2 and phase 3. But क्या होता है ना, many candidates start preparing without understanding the weightage of the topics in each phase, and they end up like spending too much time on one section while neglecting others. Okay, so the thing is that you need to understand कि कौन से section पे मुझे ज़्यादा focus करना है so that I can gain maximum marks over there. But साथ ही साथ we cannot basically afford to neglect the other topics, right? So the very first solution which I would like to suggest for this one is start by thoroughly reading the syllabus. Break it down for each phase. Okay, definitely for phase 1 and phase 2 you will see the difference in the way these questions are asked, right? But understand the number of questions, the time allotted for the sections, the weightage for each section. Make sure to check the official RBI website as well regularly for any updates or changes in the exam pattern, everyone. क्योंकि याद रखिएगा, knowing what to do and how much to allocate each section is half the battle won. Let's talk about the second one. I think this is not only related to our exam pattern or exam as in whole, but हम किसी भी काम को करने के लिए ना, अगर हमारा अप्रोच ये है तो यू ऑल आर अवेयर कि फिर किस केओस पे हम जो है ना एंड अप करते हैं, isn't it? So let's talk about procrastination and last minute cramming. Many students make this mistake, guys, of pushing their preparation until the last few months. They start off strong बट गेट साइड ट्रैक्ड एज टाइम गोज ऑन. तो इशू क्या है भाई? इशू तो ये है कि फिर इनकम्प्लीट कवरेज रहेगा, पुअर रिटेंशन रहेगा, और ट्रस्ट मी एवरीवन, दैट इज गोइंग टू शो इन द एग्जाम. तो करना क्या है? Start early, everybody. Have a good planner with yourself. Jot down what are the things you are going to focus on. What are the key areas which we need to focus on. कम से कम एक अच्छा स्टडी प्लान बनाइए जो आपकी प्रिपरेशन को मैनेजेबल टास्क्स में ब्रेक करेगा, राइट? सेट स्मॉल डेली टारगेट्स टू कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक. दिस विल एक्चुअली हेल्प प्रिवेंट द ओवरवेलमिंग फीलिंग एज द एग्जाम डे approaches, everyone. The third mistake is not practicing enough mock test, everybody. देखो, याद रखो, mock test मैं बोलती हूँ this is your you can say the जो हमारा लास्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, या आप इसे ये समझ लो कि दिस शुड बी दी लास्ट स्टेपिंग स्टोन बेसिकली, जो आपके पूरे एग्ज़ाम को एक अलग ही एंगल पर लेकर जाएगा स्टूडेंट. सो याद रखिए, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि चलो ठीक है ना, मैंने नोट्स बना लिया, मैंने उनको रिविजिट कर लिया, सो दैट इज़ एनफ. बट याद रखिए, मॉक टेस्ट आर इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द स्पीड, एक्यूरेसी और मेंटल स्टैमिना जो रिक्वायर होती है हमारे एक्चुअल एग्जाम के लिए. मेक मॉक टेस्ट अ पार्ट ऑफ ए डेली और वीकली रूटीन. अगर आप डेली चलो नहीं भी लगा सकते हो तो वीक में तो कम से कम एक बार लगा लो. प्रैक्टिस एज मेनी एज पॉसिबल एज यू कैन, एवरीवन, स्पेशली फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2. फेज़ 2 के और फेज़ 1 के आपने अगर आई एग्जाम बी पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट देखे हो तो यू आर अवेयर
कि बहुत केयरफुली, बहुत मेटिकुलसली ये क्यूरेट किया जाता है. दूसरी पॉइंट, जाहिर सी बात है, इफ़ यू आर टेकिंग मॉक टेस्ट, सो टेक दीज टेस्ट अंडर द टाइम्ड कंडीशन टू स्टिमुलेट द एक्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट. फिर लास्ट में क्या आती है बात, एनालिसिस की. एनालाइज योर परफॉर्मेंस आफ्टर एवरी टेस्ट एवरीबडी एंड फोकस ऑन योर वीक एरियाज एंड वर्क टू इम्प्रूव देम. क्योंकि याद रखिएगा, मॉक टेस्ट आर नॉट जस्ट अबाउट टेस्टिंग योर नॉलेज, दे आर अबाउट बिल्डिंग एग्जाम डे कॉन्फिडेंस. हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, राइट. अगर मैं ओवरऑल आरबीआई की एग्ज़ाम की बात करूँ, सो दिस इज़, आई मीन, बहुत बड़ा एक नेगलेक्टेड सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेक्शन. और बहुत लेट से प्रिपरेशन इस चीज़ की स्टार्ट होती है. अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स एक्चुअली फोकस हेविली ऑन ऑब्जेक्टिव पार्ट, कि वो भूल ही जाते हैं कि राइटिंग सेक्शन भी है. बट हियर इज़ द थिंग एवरीबडी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इन योर फेज 2 can make or break your score. So you need to do well in this part, क्योंकि ये आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो पुल डाउन कर देगा. सो प्लीज़ मेक श्योर, मैं सोल्यूशन क्या बताती हूँ उसको ध्यान से सुनिए. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग इन एडवांस. फोकस ऑन एसेज एवरीवन, फोकस ऑन प्रेसी राइटिंग. आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एडिटोरियल्स पे ध्यान दो, ओपिनियन आर्टिकल्स पे ध्यान दो, है ना. इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी होगी और कंटेंट भी बढ़िया होता चला जाएगा. अगेन, ये चीज़ की भी प्रैक्टिस जो है ना, वी नीड टू डू दैट अंडर द टाइम कंस्ट्रेंट्स, एज दिस विल हेल्प अस मैनेज आवर टाइम बेटर ऑन एग्जाम डे. रिमेंबर वेल एवरीबडी, अच्छी राइटिंग इज़ अ स्किल एक्चुअली दैट इम्प्रूव्स विथ रेगुलर प्रैक्टिस. ठीक है, आपने ये नहीं सोचना है कि आज मैं पहली बार ऐसे लिखने जाऊँगा एंड दैट शुड बी द बेस्ट ऐसे ऑफ द वर्ल्ड, राइट, क्योंकि अभी उसमें आपने प्रैक्टिस का तड़का नहीं डाला है. नेक्स्ट मिस्टेक सेज कि हम ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कभी कभी कुछ सेक्शंस को, जैसे जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स, तो टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है, एनी वे आई डू दिस, आई जस्ट रीड द क्विक पॉइंटर्स ऑन टू दैट, है ना. लेकिन याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेनिंग द की फैक्ट्स गाइज विच इज़ रिलेवेंट टू आवर एग्जाम. कैंडिडेट्स एक्चुअली ऑफन फेल टू स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स एंड एज आई सेड, दिस शोज ड्यूरिंग द एग्जाम. तो करना क्या है, इसे हैबिट बनानी है. जस्ट फॉलो एनी रिलायबल, गुड रिलायबल सोर्सेज लाइक द हिंदू, PIB है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आपको रिलायबल अपडेट्स मिल जाएंगे. RBI की बुलेटिन है, उसे आप रेफ़र कर सकते हैं. बहुत सारे ऐप्स हैं. यू कैन ऑल्सो रेफ़र टू दी PDFs, BPedia है, जिससे आपको काफ़ी एक्सट्रैक्टेड वर्जन मिलेगा सारे पॉइंटर्स का, जिसको आप रेफ़र करोगे. एंड येस, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्कोरिंग गाइज. नेक्स्ट मिस्टेक, एंड आई थिंक द लास्ट मिस्टेक एवरीबडी, और ये काफ़ी अंत में जो है ना ये होता है, एंड एक्चुअली दिस कॉस्ट अस अ लॉट. एग्जाम प्रेशर इज रियल गाइज, आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग दैट पार्ट, वेदर it is actually during the entire process of preparation or on exam day. Many students get anxious and actually that impact their performance. You might know the content, but if you are stressed out, आपको struggle हो जाएगा फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में. तो क्या करना है हमें, टेक रेगुलर ब्रेक्स एवरीवन while studying to refresh your mind. Do yoga, meditation, any short like walk to manage stress, listen to music, जो भी आपको लगता हो आपका stress buster हो. Get enough sleep. Please remember, get enough sleep. I'm reiterating this fact. Maintain a healthy diet to keep your energy levels up. I'm not saying कि भाई अब एक फिजिकल, एक जो है ना पर्सनल ट्रेनर ले लीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं करना है. बट हाँ, एक रेगुलर इनफ स्लीप तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. On the day of the exam, stay calm everyone. Remember, this exam is just another opportunity where you can showcase what you know. Managing stress is actually key to performing well, so make it a priority in your preparation everybody. क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप आज अगर थोड़ा ज़्यादा खुद को पुश करेंगे तो आपका कल से बेहतर अगला आने वाला कल होगा, राइट. सो दैट्स व्हाट दिस कोट सेज ऑन योर स्क्रीन. पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ़ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो. अगर वैसा ही उतनी ही मेहनत करनी है तो हम वहीं रह जाएंगे, फिर तो हम वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं. सो आई होप these mistakes will help you to avoid them. क्योंकि याद रखिएगा, लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मैक्सिमाइज योर चांस ऑफ सक्सेस. तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्रिपरेशन को वाइजली प्लान करो. रेगुलरली प्रैक्टिस करना है हमें, अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है साथ ही साथ, राइट. सो आज के लिए इतना ही. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशन एवरीबडी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.